हेलो स्टूडेंट्स। अब हम आ चुके हैं अपने वीडियो नंबर 4 of this chapter, which is known as power sharing, and today we are going to conclude this chapter through this video. And this last segment of your chapter is explaining the different forms of power sharing. So after covering why power sharing is desirable, we are going to understand the different kinds of power sharing arrangements done in different democracies. तो अलग अलग डेमोक्रेटिक सिस्टम में अलग अलग तरीके से पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ताकि एक इंस्टीट्यूशन एक पोस्ट पे बैठा हुआ आदमी सारी पावर को ऑक्यूपाई ना कर ले। तो ये जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में जो सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग आर देयर इन वेरियस डेमोक्रेसीज दैट हैज बीन गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक, एंड देयर आर फोर फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग arrangements in the democratic system. Mainly these are power sharing among the different organs of the government. This is the first one. Power sharing among the government at different levels. This is your second. Third one, power sharing among the different social groups living in the country. And the fourth one is power sharing among different political parties, pressure groups, movement groups, interest groups, etc. तो हम एक एक करके इनको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है पावर शेयरिंग अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो वी ऑल नो दैट पावर इज ऑल्सो शेयर्ड अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स। कंसेप्ट याद रखिए कि पावर एक ही इंस्टीट्यूशन को नहीं देनी है, एक ही ऑर्गन को नहीं देनी है, उसको डिसेंट्रलाइज करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। दिस वॉज द मोटो ऑफ द दिस मैकेनिज्म मेकर्स ऑफ डेमोक्रेसी। वो चाहते थे कि पावर प्रॉपरली डिवाइड हो ताकि हर ऑर्गन अलग अलग काम करे और एक ऑर्गन या एक पोस्ट डिक्टेटर की तरह बिहेव ना करे। तो देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट in which the power is shared. So power is shared among the different organs of the government, your first point. And then you will further explain. Generally we can see there are 3 organs of the government, and these 3 organs are legislature, number 1, number 2 executive, and number 3 judiciary. तो मोंटेस्क्यू आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा, उसने इस आइडिया को दिया कि पावर ऑलवेज मेक्स द पीपल एंड इंस्टीट्यूशन करप्ट rather than concentrating it to only one organ, just divide it. So he gave the suggestion of the division of this power among 3 organs, and these 3 organs legislature, executive and judiciary are there. आज दुनिया की हर डेमोक्रेसी में इन तीनों ऑर्गन्स में पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, and these 3 organs of the government they are placed at the same level. तो मैंने इनका एक ही लेवल कर दिया, L legislature, E executive, J stands for judiciary. तीनों को एक लेवल पे रखा, and they have been given their duties. तो they are doing their work independently also, and at the same time while doing their work independently they keep a check on the power of one another. So this keeping a check on the power of one another by the 3 organs is also known as check and balance system. So that system is called check and balance. यहां पे उसका मैंने आपको मेंशन नहीं किया है, लेकिन that is a very important topic for 1 mark question. What is a check and balance system? तो आप उसको एक्सप्लेन करेंगे कि when the 3 organs of the government, judiciary, legislature, executive and judiciary, they do their work independently and at the same time keep a check on the power of one another also. So this balancing of power is also known as check and balance system. नेक्स्ट पॉइंट पे आपने बताया कि क्योंकि तीनों को एक ही पोजीशन में रखा गया है तो दिस सिस्टम इज आल्सो नोन एज हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तीनों इक्वल स्टेटस में है, तो दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। दिस अरेंजमेंट ऑफ पावर शेयरिंग इज आल्सो नोन एज हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। तो ये इसके थ्रू आपने इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर दिया। ये आपका पहला टॉपिक हो गया, यानी पहला सब टॉपिक हो गया डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग का। Now we are moving to the second topic, second subtopic, that is power sharing among government at different levels. या power sharing at different levels of the government. तो फिर से स्टार्ट किया, power is also shared among the governments at different levels, at the different levels of the government, and generally there are 2 levels of the government, central government and state governments.
some powers are given to the central government and some are given to the state government. But in India, we have even made the arrangement of third level of government, which is known as local government. So in three levels of the government, power is also distributed. It simply means some powers are given to the central government कि ये आपका jurisdiction है, आप इस पे काम करिए. स्टेट गवर्नमेंट को अलग पावर, लोकल गवर्नमेंट को अलग पावर. तो ये हो गया पावर डिस्ट्रीब्यूशन, पावर शेयरिंग एट द डिफरेंट लेवल्स और एट द थ्री लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, मोर पर्टिकुलर इन इंडिया. देन द थर्ड वन, क्योंकि डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट दे एंजॉय देयर डिफरेंट पावर्स, दे हैव सेपरेट जुरिस्डिक्शन, दे हैव सेपरेट अथॉरिटी एंड दे विल वर्क ऑन दोज टॉपिक्स विच कम अंडर देयर अथॉरिटी. लेकिन हमें यह भी देखना है कि जब हम ये पावर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे टॉप पर, उससे नीचे स्टेट गवर्नमेंट और उससे नीचे लोकल गवर्नमेंट. तो ये एक वर्टिकल लाइन बन जाएगी. दिस वर्टिकल लाइन इज ऑल्सो नोन एज वर्टिकल पावर शेयरिंग. तो हम आगे चलें टॉपिक नंबर 3 पे. उससे पहले एक क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे ये भी पूछा जा सकता है, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग एंड वर्टिकल पावर शेयरिंग में डिफरेंस करिए. इन्हीं पॉइंट्स को लिखिए एक दूसरे के सामने, तो आपका वो क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा. व्हाट इज हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग? व्हेन पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स. व्हाट इज वर्टिकल पावर शेयरिंग? व्हेन पावर इज शेयर्ड एट द डिफरेंट लेवल्स. और 3 ऑर्गन्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, 3 लेवल, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट. तो ये आपके पहले 2 टॉपिक होने के बाद नाउ वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पावर शेयरिंग अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. तो अब आपने ये भी बताना है कि इनके अलावा, इन पॉलिटिकल अरेंजमेंट के अलावा, एक सोसाइटी में रहने वाले, एक देश के अंदर रहने वाले नागरिकों के बीच में भी पावर शेयरिंग होती है, उनकी कम्युनिटीज के भी बीच में पावर शेयरिंग होती है. सो पावर इज ऑल्सो शेयर्ड अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स which are living within the country, they are living in a country, and while sharing the power, और हर देश का अपना शेयरिंग का मेथड हो गया. तो वो जब अपनी सारी कम्युनिटीज के बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ध्यान रखते हैं कि सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी मिले, सबको इक्वल चांसेस मिले ग्रोथ करने के, सबकी बात सुनी जाए. तो जब सबको साथ लेके चलने की बात होगी तो ये हो जाएगा पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल कम्युनिटीज और ग्रुप्स. तो आपने लिखा कि दीज सोशल ग्रुप्स इन अ कंट्री कैन बी बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज, रीजन, कल्चर एक्सेट्रा. तो दीज सोशल ग्रुप्स कैन बी क्रिएटेड ऑन द वेरियस बेसिस लाइक रिलीजन, लाइक कास्ट, लाइक लैंग्वेज, लाइक रीजन और लाइक कल्चर. तो बहुत सारे बेस हो सकते हैं किसी भी सोसाइटी में. आप एग्जाम्पल याद करिए, जैसे बेल्जियम के अंदर जो अलग अलग सोशल ग्रुप्स थे, दे वर बेस्ड ऑन language, but in Sri Lanka the different social groups were based on their language as well as their religion also. और अगर आप इंडियन कंट्री, इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया इज नोन फॉर इट्स डाइवर्सिटी. यहां पे आपको जो सोशल ग्रुप्स देखने को मिलेंगे, दे कैन बी सीन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया दे लिव, द रीजन दे लिव. तो different bases can be there of different communities, and each democracy ensures that the power should be properly shared among these social groups by providing them equal chances and opportunity. This will be your point number 3. Then point number 4 and 5, very very simple, because you have to quote the example. One example you have already read in the previous video, that is the community government in Belgium is the example of power sharing among different social groups. ठीक है? And power is shared through the community government in Belgium between or among the Dutch speaking people, German speaking people and French speaking people. अब इंडिया में जो अलग कम्युनिटीज है और खासकर जो वीक कम्युनिटीज हैं, वो भी पावर को इक्वली शेयर करें, तो उसके लिए वी हैव मेड द प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन. So we have made the provision of reservation in our parliament, in our state legislative assemblies, in our local bodies for scheduled castes, scheduled tribes, backward classes and even for women at local level.
तो इस तरीके से हम उनको भी चांस दे रहे हैं कि वो भी पावर में आए, वो भी पावर एंजॉय करें, उनकी भी बात, उनकी भी कम्युनिटीज की प्रॉब्लम, डिजायर्स, उन सबको इंपॉर्टेंस मिले। तो इस एग्जाम्पल के साथ आपका पॉइंट नंबर 3 खत्म हो गया। नाउ वी आर मूविंग टू द लास्ट पॉइंट, दैट इज पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स, और आप इसमें इंटरेस्ट ग्रुप भी इंक्लूड कर सकते हैं, एंड इंटरेस्ट ग्रुप। जल्दी से इसको देखते हैं। तो आप कहेंगे कि पावर इज ऑल्सो इन अ डेमोक्रेसी, पावर इज ऑल्सो शेयर्ड अमंग द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज विच आर वर्किंग इन दैट डेमोक्रेटिक कंट्री, as well as among the pressure groups and interest groups also। पहले political parties की बात कर लेते हैं। So in democracy, the electoral competition is mainly take place between these political parties. Sometime party A wins the election, sometime party B, sometime party C, and similarly X, Y, Z, they win the election and they come in power, they hold the power. So power is distributed automatically through the competition, through the electoral competition among the political parties। तो एक ही पार्टी सारी पावर अपने हाथ में लेकर परमानेंटली नहीं बैठ सकती, ओपोजिशन या अदर पार्टीज को भी चांस मिलता रहता है और पावर शेयर होती रहती है। ठीक है, दैट इज द एग्जाम्पल। द अनदर एग्जाम्पल इज ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट, और हमें पता है व्हाट इज कोलिशन गवर्नमेंट। व्हेन टू और मोर पार्टीज they come together and make an alliance, make a coalition to form the government, then it is called coalition government। or coalition government is the direct example of the sharing of power। like अभी भी जो आपकी सेंटर में गवर्नमेंट है, एनडीए की गवर्नमेंट है, एनडीए इज द नेम ऑफ द कोलिशन। इसके अंदर बीजेपी और उसके साथ की अलायंस पार्टीज हैं, वो सारी मिलकर पावर में है, तो एक तरह से दे आर शेयरिंग द पावर। उनसे पहले दूसरा अलायंस, दूसरा कोलिशन जो है वो पावर में था, दैट वाज कॉल्ड यूपीए, लेड बाय कांग्रेस पार्टी। तो उसमें भी बहुत सारी पार्टीज थी, स्टेट लेवल की पार्टीज, नेशनल लेवल की पार्टीज, और उन्होंने भी फिर गवर्नमेंट को 10 साल चलाया। तो दैट मींस कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दे शेयर्ड द पावर थ्रू द कोलिशन गवर्नमेंट। अब पॉलिटिकल पार्टीज हो गया, लेट्स टॉक अबाउट द प्रेशर ग्रुप्स एंड इंटरेस्ट ग्रुप्स। प्रेशर ग्रुप्स, नाम से ही आइडिया लगाइए, विच आर मेड टू पुट द प्रेशर। सो दीज प्रेशर ग्रुप्स put the pressure on the government, clear। और प्रेशर ग्रुप बहुत से एग्जांपल है, स्टूडेंट्स यूनियन वो भी प्रेशर ग्रुप है, फार्मर्स यूनियन, टीचर्स यूनियन, डॉक्टर्स यूनियन, डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूनियंस ऑफ डिफरेंट ऑक्यूपेशनल पीपल दैट आर सर्विंग एज अ प्रेशर ग्रुप्स। या फिर आप सोशल वेलफेयर के लिए अगर आपने कोई एनवायरमेंटल सोसाइटी बना रखी है और आप गवर्नमेंट को फोर्स कर रहे हैं कि भाई वो अपनी एनवायरमेंट का ध्यान रखे, वो यमुना को बचाए, वो फॉरेस्ट कटिंग को रोके, तो इन दिस वे यू आर पुटिंग द प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट। एंड इफ द गवर्नमेंट accept your demand due to your pressure, so in a way you are also enjoying, you are also becoming the part of power sharing with the government। so in this way these pressure groups or movement groups or interest groups, they pressurize the government, influence their decision, and share the power with the government when they are able to change their decision in their favor। तो इसी के साथ ये आपका लास्ट वाला पोर्शन भी खत्म हो गया, सब टॉपिक पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप्स, मूवमेंट ग्रुप्स एंड इंटरेस्ट ग्रुप्स। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक ऑल्सो। विद दिस योर चैप्टर इज नाउ कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।